Good evening, everyone. Today we'll discuss about the topic Order 40, appointment of receivers. First of all, let's understand the concept, what receiver exactly is and who is appointing the receivers, and why is someone appointing a receiver in this particular situation. So let's move on to the next slide. I've included some main points about the appointment of receivers and why the receivers have been appointed and who appoints them. So court, whenever court thinks during pendency of a suit or maybe during pendency of any proceeding, maybe before or after when a decree is passed, if court thinks that a particular property needs a custodian, then in that case, court appoints a person of its choice as a receiver for that property. The property could be of immovable nature or maybe of movable nature, that doesn't matter, but the person will be receiver for both kind of properties, could be receiver for any kind of properties, maybe immovable or movable, and court will appoint the person. And there are not any certain grounds for the appointment of receivers. If court thinks fit, it is completely on discretion of the court. Whenever it thinks fit, it may appoint a receiver for the property. So first of all, we have established that receiver is someone who is appointed by the court. Second, because court thinks that any property may be of immovable nature or maybe of movable nature, needs some kind of custodian or maybe needs some kind of management, then it appoints a person as a receiver. Third thing, basically who receiver is, receiver gets into the shoes of real owner and he has similar rights and similar liabilities regarding the property which real owner could have had. So the basic point here is that receiver gets into the shoes of real owner and he disposes of all his duties, all his liabilities regarding that property of which he has been made custodian of regarding that property, and he can uh, deal with the property in the same manner as he is the real owner of that property. And one thing we have to keep this in mind, that of course he is getting into the shoes of real owner, but he is not someone who can sell the property or maybe who can mortgage the property or maybe who can lease over the property to someone else without the permission of the court. If court permits him to do something of that sort, he may do that, but without court's permission he cannot do that. And also the last point here, the second last point, the property shall be considered as a custodio legis, that is custody of law. And if any loss is caused to the property because of the negligence of receiver, then court may attach or sell his property to make that loss good. So it is now, after being appointed as a receiver, it's now his duty to take care of the property as he could have taken care of his own property. So now it's his duty. So if his conduct is not proper, and if he commits any negligence or maybe commits any fraud or maybe whatever kind, and the property suffers because of that particular incident, then court, if things fit, may take receiver's property, matlab receiver's own property, not the property of which he was made receiver of. The property of receiver, court can take into custody, and court can also sell that property to make that loss good which receiver's negligence and fraud caused to the property which was put in his custody. So this is the basic concept behind receiver. So let's move on to the next slide, which talks about rule 1. And I have divided all these things. First of all, I have talked about rule 1, and then in the next slide we'll deal about rule 2 and rule 3 and so on and so forth. So first of all, let's see what is the language of this rule 1. So rule 1 is talking about how appointment of receivers takes place. So wherever it is, it appears to the court to be just and convenient, the court may order what? Appointment of a receiver of any property. Appoint a receiver for the property, sorry, and whether before or after the decree. This particular thing I've highlighted also, before and after the decree. That is because I want you guys to understand this concept, that
this particular man who is appointed as a receiver could be appointed even before the decree is passed or maybe after the decree is passed. It depends on the court. If court thinks at any stage of any proceeding, if a property needs a custodian, court may appoint a person as a receiver. Second point here is remove any person from the possession or custody of the property and commit that possession and custody or management of the property to the receiver. So receiver is someone who has been made a person who will be taking care of the property from now on. So any other person who is in possession of the property right now, that person will be removed from the possession and the receiver will be put in possession of the property. So that is what that is how receivers are appointed. Let's move on to the next slide, which talks about what kind of powers receivers do have. So this is see the first point, as to bringing and defending suits for the realization, management, protection, preservation, and improvement of the property, the collection of the rent and profits thereof, application and disposal of such rent and profits, the execution of documents as the owner himself has, or such those powers as the court thinks fit. Every single thing that person does is because of the order of the court, and if he thinks fit, he can even bring a suit regarding that property, defend a suit if anything comes up against the property. He can realize the property. He is the one who is going to manage the property. He is liable for protection of the property, preservation of the property, and if any improvement also is needed in the property, he is the proper person to do that. If there is some kind of rent collection which is pending on behalf of the property, he is the person who will be able to do that. He will be also collecting rent and collecting any other kind of profits also on behalf of the owner for the property. He can execute documents also as the owner himself has, or such other powers also as the court thinks fit. अगर कोर्ट को लगता है कि बीच में कहीं प्रॉपर्टी को बेचने की जरूरत पड़ रही है, प्रॉपर्टी को मॉर्गेज पे देने की जरूरत पड़ रही है, फॉर प्रॉपर कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी, फॉर proper improvement or maybe proper preservation of property, the property should be given on lease to someone else, then receiver is someone who is authorized to execute documents to that effect. Let's move on to the next slide, which talks about a simple rule, which is that nothing in this rule shall authorize the court to remove from possession or custody of property any person whom any party to the suit has not a present right so to remove. It means that nothing in this rule authorizes the court कि वो किसी को भी उस possession से हटा के उस property के और फिर receiver को उसका possession दे दे. ऐसा इंसान जो कोई भी पार्टी ऑफ द सूट जिसकी भी प्रॉपर्टी है वहां पे या जिसकी प्रॉपर्टी नहीं है, अगर कोर्ट को लगता है कि प्लेंटिफ या डिफेंडेंट में से किसी का भी राइट ऐसा नहीं बनता कि वो प्रेजेंटली जो इंसान पोजेशन में है प्रॉपर्टी के रिसीवर के अपॉइंटमेंट से पहले उसे डिस्पोजेस कर सकता है, तब रिसीवर को उसकी कस्टडी नहीं दी जाएगी, प्रॉपर्टी की पोजेशन नहीं दिया जाएगा. इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि मान लीजिए मैंने कोई केस फाइल किया है, प्लेंटिफ हूं मैं, किसी का केस मैंने केस फाइल किया है और उस केस में अब मुझे लगता है कि डिफेंडेंट जो है वो जो उसके लिए एक प्रॉपर्टी जो है जिसको मैं रियलाइज करने के लिए डिक्री यूज कर सकती हूँ, वो प्रॉपर्टी डिफेंडेंट जो है वो उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है. और मुझे लगता है कि ये प्रॉपर्टी जो है इसको अटैच करवा के उसका रिसीवर पहले अपॉइंट करवा देना चाहिए ताकि वो प्रॉपर्टी को बेच ना पाए. तो इस चीज को कराने के लिए मान लो कि मैंने एप्लीकेशन दी है कोर्ट को, अब कोर्ट को रिसीवर अपॉइंट करना है उस प्रॉपर्टी के लिए. अब मान लीजिए कि वहां पे कोई इंसान रहता है रेंट पे, जिसको डिफेंडेंट ने रेंट पे दी हुई है प्रॉपर्टी. ऐसा इंसान जिसको डिफेंडेंट ने रेंट पे दी है प्रॉपर्टी, अगर डिफेंडेंट चाहे तो उससे पोजीशन ले भी सकता है वापस. उसका राइट बनता है डिफेंडेंट का कि वो उसको रिमूव कर सके वहां से. यहाँ पे रेंट पे दिया हुआ जो प्रॉपर्टी है, कोई टेनेंट है अगर, तो उसको तो आप पोजेशन उससे लेके कस्टडी रिसीवर को दे सकते हो. लेकिन मान लो कि कोई ऐसा इंसान है जिसपे अभी आपका राइट नहीं बनता प्रॉपर्टी उससे रिमूव करवाने का. फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ट्रांसफरी पेंडेंट राइट है. अगर मान लीजिए सूट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी वाज इन ऑपरेशन एंड पर्सन सोल्ड द प्रॉपर्टी इन बिटवीन,
अब उसमें कोई गुड फेथ में जिस इंसान ने वो प्रॉपर्टी खरीदी है और वो उसके पोजेशन में बैठा है, जब सूट डिसाइड नहीं हो जाती, neither of the party has any right to remove that person from the possession. So now here is the example for the last line of this particular slide. Any person whom any party to the suit has not a present right so to remove. ये जो present right so to remove का मतलब यही है कि चाहे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई सूट आया भी हुआ है, लेकिन अगर आपका प्रेजेंटली कोई राइट नहीं बनता, जैसा कि ट्रांसफरी पेंडेंट लाइट पे जो ट्रांसफरी इन गुड फेथ है, उसने जो प्रॉपर्टी पैसा देके डिपेंडेंट से खरीदी थी, उस इंसान के ऊपर आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप उसको डिस्पोजेस करो। तो यहाँ पे कोर्ट उसको कस्टडी में नहीं देगा प्रॉपर्टी रिसीवर को। कोर्ट क्या कर सकता है इस केस में, वो केवल और केवल प्रॉपर्टी के लिए रिसीवर ऐसे अपॉइंट कर देगा कि वो प्रॉपर्टी का ध्यान रखेगा, उसको मैनेज करेगा, बट वो ट्रांसफरी पेंडेंट लाइट को रिमूव नहीं करेंगे पोजेशन से। तो यहाँ पे बस इतनी सी चीज है कि प्रॉपर्टी जिसके लिए आप अपॉइंट कर रहे हो किसी को रिसीवर, एज अ रिसीवर यू आर अपॉइंटिंग समवन एज अ कोर्ट. So now you have to take care of this rule also, कि if that person means any party of the suit, maybe it's a plaintiff or maybe it's defendant, they neither of them had any right to remove that person from the possession. उस केस में कस्टडी ट्रांसफर नहीं होगी, सिर्फ रिसीवर अपॉइंट करके उसको मैनेज करने के लिए बोल दिया जाएगा. ठीक है. Let's move on to the next slide, which talks about remuneration which receiver is going to get out of this incident. So now it said the rule 2 says that court may by general or special order fix the amount to be paid as remuneration for the services of the receiver. यहाँ पे ये जो जनरल और स्पेशल ऑर्डर है इसका कोई खास मतलब नहीं है. यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि जनरल ऑर्डर का मतलब है कि उस कोर्ट ने हैज ऑलरेडी passed some order that any person who will be appointed as a receiver for immovable property will get 5,000 rupees per month as a remuneration for his services, and a person who is going to be appointed as a receiver of a movable property, maybe car or maybe some machine or something, that person will get 3,000 rupees per month as a remuneration for his services. ये एक जनरल ऑर्डर हो गया. और स्पेशल ऑर्डर का मतलब होता है यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज का कोई इंसिडेंट है, आज के केस में रिसीवर अपॉइंट किया जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस के लिए अगर कोर्ट कोई ऑर्डर पास कर देता है रेम्यूनरेशन के लिए कि इस केस में जो रेम्यूनरेशन है वो 10,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा इसको, तो वो उसको उस हिसाब से रेम्यूनरेशन दे सकता है. तो दिस इज a very simple kind of language for the remuneration thing. Let's move on to the next slide, which talks about duties of the receivers, which is rule 3. हमने ये देख लिया कि रिसीवर की पावर्स क्या क्या बनती हैं. वो इम्प्रूव कर सकता है, मैनेज कर सकता है, प्रिजर्व कर सकता है, रियलाइज कर सकता है प्रॉपर्टी को, कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर सकता है, रेंट प्रॉफिट कलेक्ट कर सकता है प्रॉपर्टी के लिए. तो अब कुछ ड्यूटीज भी बनती हैं रिसीवर की जब उसको इतनी सारी पावर्स नहीं है. तो वो ड्यूटीज क्या है हम उन्हें देख लेते हैं. ड्यूटीज हैं कि एवरी रिसीवर सो अपॉइंटेड शैल फर्निश सच सिक्योरिटी एज द कोर्ट थिंक्स फिट ड्यूली टू अकाउंट फॉर व्हाट ही शैल रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है और कोर्ट को लगता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी है कि उससे कोई ना कोई अमाउंट रिसीव होने वाला है उसको, रिसीवर को, जो उसको पीरियोडिकल तरीके से रिसीव होगा. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जो किराए पे दी जाती है हमेशा, और किराए पे देते टाइम उसको हर वक्त कुछ जितने भी पीरियड में वो किराए पे देगा उस चीज को, उतने पीरियड में उसको कुछ कुछ पैसा जो है वो मिलता है. तो उस पर्टिकुलर अमाउंट की सिक्योरिटी के लिए कोर्ट ये भी कह सकता है रिसीवर को कि यू हैव टू फर्निश सम सिक्योरिटी एज द कोर्ट थिंक्स फिट फॉर द अकाउंट फॉर व्हाट ही शैल रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी. तो कोर्ट चाहे अगर तो उससे सिक्योरिटी भी सबमिट करवा सकता है इफ प्रॉपर्टी इज ऑफ सच काइंड जिसमें उसे कुछ ना कुछ अमाउंट रिसीव होएगा प्रॉपर्टी से, प्रॉफिट का. Second point says submit his accounts as such period and in such form as the court directs. कि वो ऐसे ऐसे पीरियड्स पे, ऐसे इंटरवल्स पे जैसे भी कोर्ट उसको डायरेक्ट करेगा, जो भी उसे प्रॉफिट, जो भी उसे रेंट मिल रहा है उस प्रॉपर्टी से, जिस प्रॉपर्टी का रिसीवर उसे बनाया गया है, उस प्रॉपर्टी के उस अकाउंट का, उस रेंट का, प्रॉफिट का वो पीरियोडिकली कोर्ट को पूरा का पूरा सबमिट करेगा अकाउंट, जितना भी उसके पास पैसा आएगा. कि उसे अकाउंट बताना है कि हर महीने उसके पास कितने पैसे आ रहे हैं, वो सब चीजें पीरियोडिकली कोर्ट जैसे भी डायरेक्ट करेगा. दैट पर्सन हैज टू सबमिट, द पर्सन इज, there is a receiver has to submit all the details on certain periodical incidents to the court, so that court will know कि हाँ क्या चल रहा है प्रॉपर्टी के बारे में, क्या क्या चीजें रिसीव हो रही हैं. नेक्स्ट इज पे द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम एज कोर्ट डायरेक्ट्स. जो भी अमाउंट उसके लिए ड्यू है वो कोर्ट डायरेक्ट करेगा कि उसको
पे करना है तो वो चीजें उसको वहां पे कोर्ट को पे करनी है, ये भी उसकी ड्यूटी बनती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि रेंट का कोई अमाउंट है वो उसको पे करना है, या फिर मान लीजिए कि कोई भी ऐसी चीज है जो प्रॉफिट अराइज हो रहा है उस प्रॉपर्टी से, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, कुछ भी हो सकती है, उस केस में अगर कोर्ट को लगता है कि कुछ अमाउंट ड्यू है तो वो कोर्ट उसको बता देगा, वो उसे पे करना है। एंड द लास्ट पॉइंट सेज दैट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस अकर्ड टू द प्रॉपर्टी बाय हिज विलफुल नेट डिफॉल्ट और ग्रॉस नेग्लिजेंस। कि अगर प्रॉपर्टी में नेग्लिजेंस होने की वजह से अगर आपको उस प्रॉपर्टी को कुछ नुकसान हो गया है जिसका आपको रिसीवर बनाया गया था, तो उस केस में आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी आपकी बनती है। और वो जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था यहाँ पे स्लाइड पे, हम लोग ऊपर चलते हैं स्लाइड में, यहाँ मैंने आपको बताया था लास्ट पॉइंट, इफ एनी लॉस इज अ कॉज टू द प्रॉपर्टी देन ही इज द वन हु विल मेक दिस लॉस गुड। तो कोर्ट में आल्सो कैन attach and sell his property to make that loss good which occurred because of his willful default or gross negligence. So let's move on to the next slide, which talks about how we are going to enforce the duties of the receivers. So here are some enforcement measures which have been suggested by the code by which we can enforce the duties of the receivers. Where a receiver fails to submit his account at such periods as in such form as code directs, or maybe he fails to pay the amount which was due, और मे बी उसके किसी विलफुल डिफॉल्ट या ग्रॉस नेग्लिजेंस से there has been a loss which occasions to the property. In that case, what happens is court may direct his property to be attached and may sell such property and may apply the proceeds to make good any amount found to be due from his or any loss occasioned by him by him to that property. वहां पे क्या करेगा कोर्ट, अगर मान लीजिए मेरी वजह से प्रॉपर्टी को कुछ नुकसान हो जाता है, आई वाज अपॉइंटेड एज अ रिसीवर, इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज कोर्ट में अटैच माय ओन प्रॉपर्टी और कोर्ट उस प्रॉपर्टी को बेच देगा। प्रॉपर्टी को बेचने के बाद जितना भी अमाउंट कोर्ट को मिलेगा, जो उसे अमाउंट वहां पे जितना लॉस जितना मैंने किया उस प्रॉपर्टी का उसको ठीक करने में जितना अमाउंट लेना है कोर्ट उतना अमाउंट रखेगा एंड द बैलेंस विल बी पेड टू मी बैक। The last line here is and shall pay the balance to the receiver. जैसे हम डिक्री को सेटिस्फाई करते हैं ना, वैसे यहाँ पे ये लोग लॉस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। रिसीवर अगर विलफुल, आपको बस दो चीजों का यहाँ पे मेन ध्यान रखना है, दो इंग्रेडिएंट है, विलफुल डिफॉल्ट एंड ग्रॉस नेग्लिजेंस। इस केस में आपको पर्सनली आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं उस प्रॉपर्टी के लॉस के लिए, जो भी आपने लॉस किया उस प्रॉपर्टी का, विलफुल डिफॉल्ट एंड ग्रॉस नेग्लिजेंस। अगर रिसीवर ये प्रूव कर दे कोर्ट में कि उसका विलफुल डिफॉल्ट या ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं था कहीं पे भी, तो उस केस में रिसीवर विल नॉट बी कंसीडर्ड एज पर्सनली लायबल फॉर द प्रॉपर्टी एंड कोर्ट विल डिसाइड अकॉर्डिंगली कि किसकी लायबिलिटी बनती है। या फिर अगर कोई ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं है, विलफुल डिफॉल्ट नहीं है, तो अगर रिसीवर को लगता है कि किसी और इंसान के नेग्लिजेंस की वजह से यहाँ प्रॉपर्टी का कुछ नुकसान हुआ है, तो इवन रिसीवर कैन इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट दैट पर्सन फॉर कॉम्पनसेशन ऑल्सो। क्योंकि आपने यहाँ पे देखा था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पावर्स में सबसे पहले कोर्ट ने यही लिखा हुआ है, कोड में ये लिखा हुआ है एज टू ब्रिंग एंड डिफेंड सूट्स। तो अगर लगता है रिसीवर को कि किसी की वजह से नुकसान हुआ प्रॉपर्टी का, तो दैट पर्सन कैन आल्सो इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट समवन हु कॉज्ड दैट लॉस टू द प्रॉपर्टी ऑफ द रिसीवर, जिसका रिसीवर बनाया गया। ओके, so let's move on to the next slide. The last rule of this topic is rule 5, when collector may be appointed as receiver. तो इसमें ये कहा जा रहा है, मैंने आपको बताया था एक बार जब हम डिस्कशन कर रहे थे कलेक्टर के बारे में, कि कलेक्टर इज द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ रेवेन्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। तो जो कलेक्टर होता है वो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए उसका ड्यूटी बनता है पूरा, वही रेवेन्यू कलेक्शन का ऑफिसर होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट का। तो यहाँ पे इन्होंने बस उसी की सहूलियत के लिए उन्होंने कह दिया कि अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है, इफ द लैंड इज ऑफ सच काइंड, जिसमें रिसीवर हम अपॉइंट कर रहे हैं जिस लैंड के लिए, इफ लैंड इज ऑफ सच काइंड विच पेज द रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, और मे बी द लैंड ऑफ विच द रेवेन्यू हैज बीन असाइंड और रिडीम्ड। इस केस में भी हो सकता है कि दोनों केसेस में कोर्ट को अगर ठीक लगता है कि रेवेन्यू से रिलेटेड मामला है, रेवेन्यू से रिलेटेड प्रॉपर्टी है जिसका हमें रिसीवर अपॉइंट करना है, उस केस में अगर कोर्ट को ठीक लगता है कि प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट भी उससे अगर प्रमोट होता है और मैनेजमेंट अगर कलेक्टर करता है तो बेटर तरीके से होगा, तो कोर्ट में विद द कंसेंट ऑफ द कलेक्टर मे अपॉइंट हिम टू बी द रिसीवर ऑफ सच प्रॉपर्टी व्हिच पेज रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे बस इतनी सी बात है कि अलग से इन्होंने प्रोविजन लिख दिया है कि अगर ठीक लगता है लैंड इज ऑफ सच काइंड व्हिच पेज रेवेन्यू आल्सो,
इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, कलेक्टर को भी उसकी कंसेंट से वहां पे हम रिसीवर अपॉइंट कर सकते हैं, कोर्ट कर सकते हैं, मतलब हम तो क्या कर सकते हैं, तो कोर्ट उसको रिसीवर अपॉइंट कर सकता है वहां पे, अगर कलेक्टर वहां पे कंसेंट दे देते हैं आपने। तो ये पूरा कंसेप्ट है रिसीवर का, इसे आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा पूरा। ये मैंने मेन पॉइंट्स जो हैं ये फर्स्ट स्लाइड में लिख दिए थे, उसके बाद की सारी स्लाइड जो है बहुत, तो इसकी लैंग्वेज बहुत आसान है, बहुत आसान सा कंसेप्ट है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो आप मेन पॉइंट्स ठीक से पढ़ लीजिएगा, पहले जो मैंने ये 5 बताए हैं, उसके बाद आप लैंग्वेज देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। इन केस ऑफ एनी डाउट यू मे रीच me on WhatsApp or maybe on call. So that would be all for today. Thank you.